Hello everyone. So now we are here with the botany section, the section A. In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? Survival के लिए competition के अलावा कौन सा एक method है जो कि वो evolve करते हैं? So we know that it is resource partitioning. वो resource का partitioning कर लेते हैं. NCERT में मैक आर्थर का एक्सपेरिमेंट था वार्बलर्स पे. मैं आपको दिखा देता हूँ. I'll show you. यहाँ पे रिसोर्स पार्टिशनिंग. सबसे पहले यहाँ पे देखिए गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will be eliminated. This may be true if resources are limiting, but not otherwise. More recent studies do not support such gross generalizations about the competition. मतलब जो recent studies हैं वो इन सब चीज़ों पे अब गॉस की competitive exclusion पे अब rely नहीं करती. They do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence. Okay, coexistence rather than exclusion. तो स्पीशीज किस चीज़ को प्रेफर करती है? को एक्जिस्टेंस को प्रेफर करती है rather than complete exclusion. Such mechanism is known as resource partitioning. If two species compete for same resources, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding, different foraging patterns. ये जो मैंने आपको बताया, मैक आर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. So this was the correct answer, resource partitioning. Okay. Now the next question, match the list 1 with list 2. Cells with the active cell division capacity. Active cell division capacity वाले cells को क्या बोलते हैं? Meristematic cells. So A का second. ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन. So this will be correct. और बाकी के देख लेते हैं. Tissue having all cells similar in structure and function. All cells having similar structure and function. ये कौन से होते हैं? Parenchyma, collenchyma. ये कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं. सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन यही है. सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स. सी टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आते हैं? ये कौन से सेल्स होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. सो ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या वास्कुलर टिश्यूज हैं. सो इट इज वास्कुलर टिश्यूज. डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन, दे आर स्क्लेराइड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा है. फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट. चिल्ड एथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करता है? डीएनए को. It is clearly given in NCERT textbook, and with the help of spooling we can separate out DNA. हम DNA को सेपरेट कर सकते हैं by the spooling process. Okay, spooling process से अपन इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. Match list 1 with list 2. Again match the following type question. Cohesion जो होता है को मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से उनका इंटरेक्शन, सेम तरीके के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन. को का मतलब होता है सेम. सो इसमें होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो ए का हो जाएगा सेकंड. सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर एलिमिनेटेड हियर. एडहेशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंट सरफेसेस से इंटरेक्शन. ओके, सो एडहेशन इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सर्फेसेस. सो बी का फोर्थ हो जाएगा. सो इट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. Now we have next question. The term used for transfer of polygons of anthers from one plant, anthers of one plant to stigma of a different plant. अलग plant आ गया. Okay. This is known as, of course, xenogamy, which is also known as cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप होता है xenogamy. जिटोनियोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में जिटोनियोगैमी कहते हैं. ओके. कैस्मोगैमी में जो हमेशा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो हमेशा ऑलवेज क्लोज रहते हैं. ओके, दे आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. ओके. एंड कैस्मोगेमस जो नॉर्मली सीन फ्लावर्स जो टाइम टू टाइम ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, दे आर कैस्मोगेमस फ्लावर. सो इन दिस द आंसर विल बी xenogamy. ओके. Which are the following stages of meiosis involves division of centromere. सेंट्रोमियर का जो डिवीजन होता है वो कहाँ पे होगा? एनाफेज सेकंड में. या तो यहाँ पे माइटोसिस बोलता है तो एनाफेज भी चलता है, पर इसने मियोसिस बोला है. सो एनाफेज सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे जो ये स्पेंडल फाइबर्स होते हैं ये इनको अपनी तरफ बुलाते हैं. सो यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर का डिवीजन ना होके बस ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं. ओके. बट जो ये होता है एनाफेज 1. एनाफेज 2 में क्या होता है?
एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं एनाफेज सेकंड में। सो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो सेंट्रोमियर का डिवीजन करेंगे, काइनेटोकोर से कनेक्ट होंगे वो, एंड वो सेंट्रोमियर का डिवीजन करवाएंगे एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में ओनली एंड ओनली जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इनमें करेक्ट कौन सा होगा? सो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस न्यूमोनिक होता है DAE, डाई में होती है ना। सो एक न्यूमोनिक होता है DA, D फॉर डीनेचुरेशन, A फॉर एनियलिंग एंड E फॉर एक्सटेंशन। ओके, सो इस न्यूमोनिक से आप याद रख सकते हैं डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड एनियलिंग। ओके, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं है, रियली सॉरी, denaturation, annealing and then extension. Okay, first option will be the correct answer. Gamma cups are present in these are the characteristic of liverworts. Liverworts and mosses, ये दो इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, बट मॉसेस जो होते हैं उनमें गैमा कप्स आर एब्सेंट। सो ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स में आते हैं, मॉस एंड लिवरवर्ट्स। ओके, हॉर्नवर्ट्स भी आते हैं, बट उनमें हॉर्नवर्ट्स जो होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, एंड लिवरवर्ट्स में इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है दे रिप्रोड्यूस बाय गैमे। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट्स बाय द पेरेंट्स, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram called it's a Punnett square. Okay, हम जो चेकर्स बोर्ड बनाते हैं, पुन्नेट स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है? चेकर्स बोर्ड। जो चेकर्स बोर्ड होता है उसका दूसरा नाम होता है पुन्नेट स्क्वायर। ओके, द फैक्टर दैट लेट्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट मतलब कंप्लीटली न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाना, इट इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, completely new species का formation. Okay, and this is seen in genetic drift. Genetic drift हो गया, कोई भी एक genetic mutation drift हो गई, उसमें ये जनरली अपने को मिलता है। genetic drift में जीन्स में कोई अपने को चेंज मिलने को, सडन चेंज देखने को मिलता है, that is known as genetic drift. Okay, genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as, we all know that they are known as heterosporous. Okay, plants follow different pathways to respond to environment or phases of life to form different kind of structures. This ability is called plasticity. Okay, plasticity की definition ही है, ठीक है? It is a mechanism to acquire different kind of structure in a same plant में different structures देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाटर है और एक प्लांट है जो आधा वाटर में उग रहा है और आधा एयर में उग रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी लीव्स होगी वो रिबन लाइक होती हैं, एंड यहाँ पे जो इसकी लीव्स होंगी वो नॉर्मल लीव्स की तरह होंगी जो अपन देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से नहीं होते? सो वी ऑल नो दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, इन चारों में से अगर कोई भी इस ऑप्शन में है, सो इट इज़ नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इट इज़ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। ओके, दो ही टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं। सो वी कैन सी दैट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा अपने को दे रखा है। सो वी नो दैट डीएनए से डीएनए का बनना, दिस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन वाले को अंडरलाइन कर लेंगे हम। डीएनए से एमआरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से के प्रोटीन्स का बनना, so D will be proteins, it is known as translation. D is protein and this is translation. So third option will be the correct answer. Sorry, third option will be the correct answer. When centromere is situated in the middle of the two equal arms of chromosome is referred as, we all know that metacentric. Okay, telocentric कौन सा होता है? जिसमें only and only one वो होता है, आर्म होता है। ओके, सब मेटासेंट्रिक जहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। एक्रोसेंट्रिक जिसमें एक आर्म छोटा होता है, एक आर्म एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है, दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है, एंड टीलोसेंट्रिक में ओनली जो सेंटर में होता है वो टर्मिनल प्रेजेंट होता है एंड ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट। ओके, DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as it is a fact based question, bright orange bands में हमको विजिबल होते हैं। मैं एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ये आपको बता देता हूँ। Separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with the compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation, and we cannot see pure DNA fragments in the visible light.
ना हम विजिबल लाइट में देख सकते हैं और ना ही प्योर डीएनए हम देख सकते हैं। इथीरियम ब्रोमाइड हमको लगाना पड़ेगा और यूवी रेज भी अपने को लगानी पड़ेंगी। विदाउट स्टेनिंग हम नहीं देख सकते। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। सो दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, ये बुक में से अपना स्टेटमेंट हो गया। The site of perception of light in plants during the photoperiodism is, we all know that it is leaf. Okay, leaf जो होता है वो photoperiodism का site of perception होता है। When gene targeting involving, this is somewhat a good question. When gene targeting involving gene amplification is attempted in individual's tissue to treat a disease, disease को treat करने के लिए अगर इसको यूज में लिया जाता है, so it is known as, अब इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, जीन थेरेपी एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस। क्योंकि मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम डिजीज ट्रीट करते हैं, जीन थेरेपी में भी हम डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, बट मॉलिकुलर डायग्नोसिस में कभी भी हम जीन टारगेटिंग नहीं करते। ओके, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में कभी भी जीन टारगेटिंग नहीं होती। जीन एम्प्लीफिकेशन भी मॉलिकुलर डायग्नोसिस में होती है, बट जो जीन टारगेटिंग होती है वो ओनली एंड ओनली जीन थेरेपी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो आंसर विल बी जीन थेरेपी। ओके, which are the following plants is monoecious. Okay, so monoecious plant कौन सा होता है? I'm sorry, जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में हो। ओके, एक ही बॉडी में है, सो इट इज नोन एज मोनोइशियस। मोनो मतलब वन, एक। सो एक ही बॉडी में अगर मेल भी है और उसी बॉडी में फीमेल भी है, दैट इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस जो प्लांट्स होता है उसका एग्जांपल होता है कारा। इसमें जो मेल पार्ट होता है इसको ग्लोब्यूल बोलते हैं एंड जो फीमेल पार्ट होता है इसको न्यूक्यूल बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? प्योरिफिकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोटीन इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। मॉलिकुलर डायग्नोसिस पीसीआर में होता है। जीन एम्प्लीफिकेशन पीसीआर करते ही हम जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, ताकि उसके बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाए, बिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी बन जाए। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, बिल्कुल पीसीआर में हम जीन म्यूटेशन का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज सबसे पहले क्रिस्टे। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्रिस्टे। सो इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टे। सो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, ये एक ही ऑप्शन में, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डायडेल्फस स्टेमन इज फाउंड इन, जो डायडेल्फस कंडीशन होती है ये कौन सी फैमिली का पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक होता है? फेबेसी। फेबेसी फैमिली का ये पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड फेबेसी फैमिली का यहाँ पे जो है पी है, पी यानी कि मटर। सो डायडेल्फस स्टेमन इज फाउंड इन पी। चाइना रोज एंड सिट्रस में पॉलीडेल्फस कंडीशन होती है। ओके, एंड मालवेसी में एम, मैं पूरा बता देता हूँ। मालवेसी जिसमें चाइना रोज आता है, यहाँ पे मोनोडेल्फस। सो यहाँ पे ये एम एंड एम, इससे याद रख सकते हैं। जो अपन इंस्टाग्राम पे डीपी लगाते हैं, इट इज डायडेल्फस, सॉरी डायडेल्फस कंडीशन किसमें? फेबेसी में। सो पी, डी पी, दिस इज द न्यूमोनिक फॉर दिस एंड द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे मेरिस्टेम जो कल्चर होता है, मेरिस्टेम कल्चर इट इज़ फॉर वायरस फ्री प्लांट्स। जो मेरिस्टेम कल्चर होता है हम वायरस फ्री प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मैं डायरेक्ट सी पे क्यों पहुंचा? क्योंकि ये जनरली ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है मेरिस्टेम कल्चर पे। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दिस इज अ प्लांट, ये इसकी लीव्स हैं, यहाँ पे इसका मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अगर हम कोई कल्चर करते हैं, सो वायरस जो अगर प्रेजेंट होता है वो जनरली ग्रोइंग पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम इस चीज़ को हटा देंगे, इस चीज़ को हम अगर अपन ने हटा दिया, वायरस जो होता है वो ग्रोइंग पार्ट्स में होगा, इस चीज़ को अपन ने हटा दिया, तो एक तरीके से वायरस भी यहाँ पे हट गए। वायरस जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे एक्ट करते हैं एंड वायरस को अगर हम हटा देंगे, सो ये जो प्लांट है वो वायरस फ्री हो जाएगा। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लीड्स यील्ड्स अस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर लीड्स टू वायरस फ्री प्लांट्स। सो सी का फोर्थ, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एमेंसेलिज्म कैसा इंटरेक्शन होता है? नेगेटिव एंड जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है। नेगेटिव, एक स्पीशीज़ को हार्म होगा और एक स्पीशीज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, एमेंसेलिज्म। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एमेंसेलिज्म इज, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एमेंसेलिज्म। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि
द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन. आपको 4 इंटरेक्शन होंगे दिए हुए. सो एमेंसिलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी के लिए आंसर इज 1. विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. नो, अनयूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होती हैं मैच्योर सी ट्यूब में, और न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है. न्यूक्लियर मैच्योर सी ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इट इज इन्यूक्लिएटेड. ओके, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं वो करेक्ट है कि नहीं है. माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. येस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन. एनसीईआरटी की ये लाइन है. पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म. येस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. मैं एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा कहाँ पे गिवन है ये. न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, तो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे रेड कलर में जो मैं बना रहा हूँ दीज आर न्यूक्लियर पोर्स. सो जो आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड आरएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ये बाई डायरेक्शनल इसमें मूवमेंट होता है आरएनए का थ्रू न्यूक्लियर पोर्स. एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है, लेट मी शो यू. number of places at a number of places nuclear envelope is interrupted by pores formed by the fusion of two membrane. ठीक है, these nuclear pores are passages through which the movement of RNA and proteins takes place in both directions between nucleus and cytoplasm. Okay, so this is the statement from NCERT in this question. So this statement will be correct. Okay, so the correct answer, that is the incorrect statement. Question में incorrect statement पूछा था, so first will be the correct answer. Okay, हमको जनरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख के छोड़ देते हैं. हमको दूसरे स्टेटमेंट भी पढ़ने होते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, ऐसे इंपल्सिव डिसीजन लेके एग्जाम में नहीं करके आना होता. जल्दी करना है पेपर, जल्दबाजी में नहीं करना. टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, इट इज, वी नो दैट इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड. 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड. फर्स्ट ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर. द फॉलोइंग एल्गी, विच आर द फॉलोइंग एल्गी. एल्गी के बारे में पूछा है. कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल. मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ये दोनों रिजर्व फूड होते हैं किसमें, ब्राउन एल्गी में. मैंने मैनिटॉल सॉरी लैमिनारिन क्यों लिखा, क्योंकि आपके 2024 में मैनिटॉल की जगह लैमिनारिन भी हो जाएगा और सेम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये भी कर सकता है. ओके, सो लैमिनारिन भी होता है, मैनिटॉल भी होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्टोकार्पस, विच इज अ ब्राउन एल्गा. और ये कौन सी क्लास होती है, फियोफाइसी क्लास होती है ब्राउन एल्गा वाली. ओके, जो ग्लेसिलेरिया है वो रेड एल्गी है, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स है वो ग्रीन एल्गी है. ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन द फील्ड इज. जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है वो कौन सा प्लांट हार्मोन होता है. इट इज 2,4-D. ठीक है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. ओके, next question is the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in soil at any given time is referred as. So यहाँ पे दो ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो एक न्यूमोनिक बनाया है मैंने, दैट इज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल. ओके, जहाँ पे भी ये सॉइल आ गया, सॉइल मतलब S, तो स्टैंडिंग स्टेट तो SS. ओके, S for soil, S for state. So this can be a mnemonic for this. Okay, तो अगर soil में इन सबका content पूछा है, then it is none other than standing state. Okay, standing crop is a different thing. Mutations in plant cells can be induced by mutations. कैसे induce कर सकते हैं? Of course, gamma rays से हम mutations को induce कर सकते हैं. Mutations can be induced by gamma cell. Yes, it is correct. Okay, क्योंकि क्यों always upright क्यों? Because जो primary consumer होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. जो प्राइमरी कंज्यूमर उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और ऊपर जाते जाते जो एनर्जी का अमाउंट है वो कम होता जाता है. सो एनर्जी के लिए जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट आता है. ओके, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट. यस, ये भी करेक्ट है. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. ये जनरली इन्वर्टेड होता है. सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा. इन द इक्वेशन GPP माइनस R इक्वल्स टू NPP, इस इक्वेशन में R क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रेस्पिरेटरी लॉसेस. सो रेस्पिरेशन लॉसेस इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कैरागीन. कैरागीन इज प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. ओके, कैरागीन और ये दोनों के दोनों कौन से एल्गी हैं, ये रोडोफाइस यानी कि रेड एल्गी में क्लासीफाई होते हैं. ओके, first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum. Okay, sorghum क्या है, it is a C4 plant. इसको C4 plant क्यों बोलते हैं, because first stable carbon compound is 4 carbon
कंपाउंड, मतलब उसमें 4 कार्बन होते हैं, ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में। सो इन सब में सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। और अगर C3 प्लांट्स की मैं बात करूँ, C3 प्लांट्स, उसमें क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। बट यहाँ पे सोर्गम का पूछा है, C4 प्लांट का, सो इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ओके। सो लिस्ट 1 इज लिस्ट एंड लिस्ट 2 को हमको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में, सो लेंटिसल्स ए का थर्ड, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। सो ए का थर्ड, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेकंड, और बाकी भी देख लेते हैं। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन बोलते हैं, ओके, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन बोलते हैं। एंड जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको हम बोलते हैं फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म बोलते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब अ सॉर्ट ऑफ जुगाड़ या ट्रिक है, वो न्यूमोनिक है। जो कॉर्टेक्स होता है वो सबसे बाहर की तरफ जो चीज़ होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड जो डर्म है, डर्म रिप्रेजेंट्स द स्किन। तो हम अगर प्लांट की उसमें बात करें कॉन्टेक्स्ट में, सो प्लांट का जो स्किन होता है, स्किन ऑफ कोर्स बाहर ही होता है, अपन में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है अपनी स्किन। सो जो बाहर की लेयर है कॉर्टेक्स, एंड जो डर्म है उसको हम रिलेट करके एक न्यूमोनिक बना सकते हैं, ओके। सो दिस कुड बी अ न्यूमोनिक फॉर दिस। एंड कॉर्क में क्या होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ओके, ये अपने को पता होना चाहिए। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर विद द सेक्शन बी, which of the following statement is incorrect? During aerobic respiration, okay, aerobic respiration की बात है, role of oxygen is limited to the terminal stage, yes, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। कौन से स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे? जब कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A3 पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है उसका, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम गेन करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ओके। एंड देन the next option says that ETC, electron transport chain, in electron transport chain ETC, one molecule of NADH gave rise to 2 ATP molecules and one FADH to give rise to 3 ATP molecules. No, this is incorrect statement. because क्यों? अपन को पता ही है NADH प्लस H प्लस, इससे अपने को 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एंड FADH2 से अपने को मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेटमेंट में इसने रिवर्स कर दिया, एक NADPH से 2 ATP molecules, नो, एंड 1 FADH से 3 ATP molecules, नो। तो सेकंड ऑप्शन इज द statement which is incorrect. So this will be the answer. Now match the column type of question. Okay. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे जो मैं ट्रिक यूज़ करता था वो ये थी कि अगर मैं जहाँ पे भी G2 देख लूँ, ठीक है, एंड मैं C5 देख लूँ, G2 एंड C5, सो इट इज़ द सोलेनेसी फैमिली, बी का फोर्थ, ओके। एंड उससे भी अगर नहीं आता है ये समझ में कि G2 है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो फिर कैसे? देन उससे भी इजी एक ट्रिक है, जहाँ पे भी G3 देखें ना अपन, सॉरी, जहाँ पे भी G3 देख लो आप, ओके, इट इज़ नन अदर देन लिलिएसी, सो सी का सेकेंड, ये एक ही ऑप्शन में, सो फर्स्ट विल बी द आंसर, ओके। अगर ऐसे अगर अपने को कॉलम्स मिल जाएं मैच द फॉलोइंग के, सो अपने को सिर्फ और सिर्फ या तो सोलेनेसी याद है तो सोलेनेसी याद कर लो, अगर सोलेनेसी याद नहीं कर सकते सो लिलिएसी, यहाँ पे सारे के सारे देखो 3 हैं, ओके, सो ये याद करने में भी आसान रहता है, लिलिएसी, ओके। एंड एक 9+1, ये जो 9 है ना, ये 9+1 जहाँ पे दिख जाए, इट इज़ फेबेसी, ओके। सो मैं तो जनरली फेबेसी और इसको लिलिएसी को याद रखता हूँ, क्योंकि ब्रेसिकेसी एंड सोलेनेसी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सो इसको याद रखना फिजिबल नहीं होता, इन दोनों को याद रखना फिजिबल होता है, ओके। अगेन मैच द कॉलम, हाँ, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली तैयारी करना। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है इट इज डीएनए रेप्लिकेशन, सो ए का फोर्थ, ये 2 ऑप्शंस में गिवन है, ओके। G2 फेज या क्विसेंट फेज, अगर क्विसेंट फेज अपन देखें, सो ये क्या होता है? इनएक्टिव फेज होता है, ओके। सो सी का सेकेंड, बाकी के भी देख लेते हैं। बी, G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। एंड G1 फेज, हम जब भी लिखते हैं इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं G1S G2M, वापस से इसको रिपीट करो, G1S G2M। जब भी ऐसे G1S G2M इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फेज के बाद कौन सा फेज आता है, सो इसको 2 बार लिख लो, G1S G2M एंड G1S G2M, ओके। एंड नाउ G1 फेज ये बोलता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? इट इज नन अदर देन एस फेज, सॉरी, इट इज नन अदर देन एस फेज, एंड माइटोसिस
ओके, एम फेज जिसको अपन बोलते हैं. सो G1, it is the phase between the mitosis phase and the S phase. तो D का थर्ड आ गया. ओके, सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायोटेक जो होता है उसमें कॉमनली पूछे जाते हैं. अब प्लाज्मिक PBR322 has a PST restriction enzyme site within gene एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस दैट कन्फर्स एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस. ओके, AMPR जीन है जहाँ पे जो किसको कन्फर करता है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस को. अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी अपने को पता होना चाहिए बात. ओके, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन. ओके, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए अपन ने इस साइट को यूज में लिया एंड देन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्टेड इन इक्वलाइज स्ट्रेन. सो इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. आई थिंक इसका डायग्राम है नहीं, सो मैं हैंड से डायग्राम बनाता हूँ. जो PBR322 होता है उसमें एक साइट है PST1. सो लेट ये PST1 साइट है एंड इसी साइट पे इट इज़ गिवन दैट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है. नाउ क्या किया हमने, इस वाली साइट को हमने कट कर दिया. सॉरी, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाली साइट को हमने कट किया है. ओके, ये वाली साइड जो है वो कट हो गई एंड इस पे एक ऐसा जीन लगा दिया दूसरा जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन करता है. सो इट इज़ ऑब्वियसली कि ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है ये वाला जीन अगर निकल गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया. ओके, सो ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगा. ओके, सो हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखा है कि द बैक्टीरियल सेल विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट द एम्फिसिलिन. ओके, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस इसमें खत्म हो जाएगा. अभी तक के लिए एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रखता था, पर जब हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया तो जो है एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो गई. फर्स्ट ऑप्शन इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. बाकी के पढ़ लेते हैं. द ट्रांसफर सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्फिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज. नो, एम्फिसिलिन के लिए ये रेजिस्टेंस खो चुका है. ओके, इसलिए गलत हो गया. इट विल लेड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल. नो, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है. इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन. नो, ये भी इररिलेवेंट है. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, मिथाइल गुआनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है इट इज एक्टेड एट द 3' एंड ऑफ HNRNA. नो, ये 3' एंड पे नहीं होता, ये 5' एंड पे होता है. ओके, RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Yes, this is correct. बाकी के भी पढ़ लेते हैं. Coding strand in a transcription unit is copied to mRNA. No, coding strand नहीं, template strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के काम में आता है. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. नो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स. ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे 3' नहीं है, 5' होना चाहिए था. यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए था. एंड यहाँ पे प्रोकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स होना चाहिए था. ओके, nowadays it is possible, now next question, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell followed by its detection using autoradiography. So it is a question of autoradiographic techniques because इसका reason क्या होता है? Mutated gene particularly appears on a photographic film, partially appears on photographic film. No, partially appear नहीं, ये does not appear, it does not appear होना चाहिए था यहाँ पे. जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसमें जो म्यूटेटेड जीन होता है वो अपीयर नहीं होता. ओके, ये ऐसा ऑप्शन अपने को ढूंढना है. म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. नो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट. ओके, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज इट हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद इट. एज इट हैज, यहाँ पे था नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट एंड यहाँ पे है इट हैज कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट. सो जब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तभी तो वो नहीं दिख रहा उसके अंदर, फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर. ओके, and this as it is statement is given in NCERT textbook. Okay, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार. The clone having mutated gene
will not appear on the photographing because probe will not have complementary with the mutated gene. Mutated gene के साथ उसकी कोई complementarity नहीं होगी. Okay, so this will be the correct answer. In the exponential growth equation, this e represents, it is a base of natural logarithms. ठीक है, it is a base of natural logarithms. ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है. The correct pair is subsidiary large colorless empty cells in epidermis of grass leaves. Subsidiary cells नहीं होते, ये bulliform cells होता है. ये जो लिखा है ये bulliform cells होता है. In dichotomy, vascular bundles are surrounded by large thick walled cells. Conjunctive tissue, no. Cells of medullary rays that form a part of cambial ring, it's interfascicular cambium. नहीं, ये थोड़ा ना होता है. Cells of medullary rays that form part of cambial ring is not interfascicular cambium. नहीं. Loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens-shaped opening in bark. Yes, it is spongy parenchyma. सही तो ये. Spongy parenchyma, it forms a lens-shaped opening in bark. Okay, this is a nice question. इसमें आपको ये definition पता होनी चाहिए. In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? In Rosaceae and Leguminaceae, the fourth option. NCERT makes statement given and these two families, the pollen grains retain their viability for months and years after their release. Okay. What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? RNA polymerase third क्या करता है? It transcribes tRNA, 5S RNA and snRNA. Okay, it is a fact-based question, so ये आपको पता होना चाहिए. Which of the following statement is incorrect? Both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation में ये दोनों चीज़ें synthesize होती हैं. बिल्कुल सही बात है. Okay, non-cyclic का बोला है इसने भी. Stroma lamella have PS1 only and lack NADP reductase. बिल्कुल सही बात है. Grana lamellae have both PS1 and PS2. ये भी सही है. Cyclic phosphorylation involves both PS1 and PS2. No, ये गलत हो गया. क्यों? क्योंकि cyclic phosphorylation कहाँ होता है? Stroma lamella में. And stroma lamella में only and only PS1 present होता है. Okay? इसलिए ये statement गलत हो गया. Which of the following statement is correct? Correct statement बताना है आपको. Fusion of two cells is called karyogamy. No. Karyogamy क्या होता है? Nucleus का fusion होता है. Fusion of protoplasm between two motile on non-motile gametes is called plasmogamy. इसमें शायद कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है. आगे के ऑप्शन पर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. नो, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स बोलते हैं ना उनको, या फिर उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. सम ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स. नो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो शीथ सेल्स नहीं होते. 148 प्रोटीन में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं. सो ए का फोर्थ. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें सी डबल बॉन्ड होता है. सो बी का फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called. DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific regions of DNA sequence called repetitive DNA. No, not repetitive DNA. Satellite DNA. Satellite DNA में तो अपन differences देखते हैं. Differences किसमें देखते हैं अपन? Satellite DNA में. Okay. So again we have column 1. Match the following type of question. So nitrococcus क्या करता है? It helps in the conversion of nitrite to nitrate. ठीक है. Nitrite is NO2 minus to NO3 minus. ठीक है. So A का थर्ड. ओके. जो राइजोबियम है, इट इज़ अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सो बी का फर्स्ट हो गया. थायोबैसिलस इट ये क्या है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है. ये अमोनिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड नाइट्रोबैक्टर it helps in the conversion of ammonia to nitrite. Okay, so third option is the correct answer. Now we are on with the zoology section. A specific recognition sequence identified by the endonucleases to make cut F as a specific position within DNA is known as. It is the paleontolomic site. जो restriction endonuclease होते हैं, ये कौन सी साइट पे क्लीव करते हैं? They are known as paleontolomic sites. Paleontolomic sites क्या होता है? जो 5' to 3' अगर अपन रीड करें या 3' to 5' अपन रीड करें,
दोनों की दोनों सीक्वेंस सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल GAATTC एंड GAATTC दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के. एंड यहाँ से भी रीड करो चाहे यहाँ से रीड करो, दोनों एक ही तरह से रीड होंगे. दैट इज GAATTC. फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स. 2n की वैल्यू जो है वो 8 क्रोमोसोम है इन ईच सेल. ओके, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, G1 फेज में 8 है, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज. ओके, आफ्टर S फेज उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे. सो G1 फेज में अगर 8 क्रोमोसोम है, सो S फेज में क्या हो गया, DNA रेप्लिकेशन हो गया. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया. मतलब अगर 8 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1. ओके, मतलब 1 का मतलब मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैसे तो 8 है, चलो कंफ्यूज नहीं होना अपने को. सो 8 का क्या मतलब है, ऐसे 8 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 क्रोमोसोम्स हैं. तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है. सो कितने यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बस ऐसे हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8. एस फेज भले ही अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे डबल हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम डिटरमाइन करते हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे. ओके, सो एस फेज में जो है रेप्लिकेशन हो रहा है, पर ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे. सो जो G1 फेज में था वही एस फेज, उतने ही क्रोमोसोम्स S1 में होंगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडी. मस्कीडी इज हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है वो मस्कीडी कहलाती है. सो इट इज द फोर्थ ऑप्शन. थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज it is the second name given to intestinal juice. Okay, so the second option will be the correct answer. With regard to insulin, choose the correct options. Correct options अपने को choose करने हैं. C peptide is not present in mature insulin. Yes, this is the correct one. The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide. No, this is an incorrect statement. The proinsulin has C peptide. Yes, C peptide is जो proinsulin होता है उसमें C peptide present होता है. Okay, A peptide and B peptide are interconnected by disulfide bridges. Yes, it is a correct statement. Okay, कैसे connected होते हैं A chain and B chain? ऐसे disulfide bridges से ये connected होती हैं. Okay, so A, C and D are correct. A, C and D. So third option will be the correct answer. Person with AB blood group are called universal recipients due to, इनमें दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स. क्यों? बिकॉज इनमें ये क्या करते हैं, ये हर एक ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेते हैं. कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज. यहाँ पे ए एंड बी एंटीबॉडीज जो होती है ना, दो टाइप की एंटीबॉडीज है, ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी. ये दोनों की दोनों एब्सेंट होती है. ओके, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन सरफेस ऑफ नो, ये तो ओ ब्लड ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ पे एंटीजन ए एंड बी नहीं होता. एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, नो, एंटीजेंस प्लाज्मा में होते ही नहीं पहली बार. प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, प्रेजेंस नो, प्रेजेंस नहीं, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, यस, दिस इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल, बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन. ओके, हमने क्रॉस कराया एक मेल एंड एक फीमेल विच आर होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया. द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी डिजीज प्रोजेनी कौन सी होगी? ओके, सो अच्छा, एक्स वाई की यहाँ पे जरूरत नहीं बिकॉज इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. सो एक्स वाई की जगह हम क्या लेंगे, ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए यूज में ले लेते हैं. सो हेट्रोजाइगस है, जो कैपिटल ए है मैं उसको सिकल सेल एनीमिक जीन मान रहा हूँ, एंड जो स्मॉल ए है मैं उसको नॉर्मल जीन मान रहा हूँ. ओके, जो कैपिटल ए है मैं उसको मान रहा हूँ नॉर्मल. ओके, एंड जो स्मॉल ए है मैं उसको मान रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया जीन. ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल ए विच इज नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए दो बार बनेगा विच इज ऑल्सो नॉर्मल. सो डिजीज स्मॉल ए दिस विल बी डिजीज. टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 है, एंड डिजीज कितने हो रहे हैं? 1. सो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 25. सो 25%, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन. The thrombin is that enzyme which is used for the conversion of fibrin to fibrinogens to fibrin.
fibrinogen to fibrin thrombin and prothrombin to thrombin conversion. It is done by the enzyme thrombokinase. Okay. Partial pressure in mm of Hg of oxygen एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई. एल्वियोलाई पे जो ऑक्सीजन होता है वो 104 होता है. सो यस, ऐसा ही ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscle is known as myasthenia gravis. myasthenia gravis में क्या होता है? जो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है यहाँ पे, which degenerates the receptor of acetylcholine. एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर्स होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है या डिजेनरेट कर देती है. ओके. Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription. It is DNA dependent RNA polymerase enzyme. Okay. The second option will be the correct answer. Which of the following RNA is not required for synthesis of protein? Protein synthesis के लिए हम कौन सा RNA यूज में नहीं लेते? हम mRNA यूज में लेते हैं. ओके. कैसे? जो ये राइबोसोम है, यहाँ पे ये mRNA है, ये mRNA. ओके. एंड ये राइबोसोम है जिसकी ये 30S यूनिट है, ये 50S यूनिट है. ओके. यहाँ पे जो है tRNA भी ऐड होते रहेंगे. सो tRNA भी यूज में आता है. ओके. प्रोटीन सिंथेसिस में. एंड siRNA भी यूज में आता है. सो विच वन इज नॉट यूज्ड? rRNA is not used for the synthesis of protein. Okay. Which of the following is an example of hormone releasing IUD? Hormone releasing IUD, the Lenovo copper T, copper 7 and Multilor 375. These are all copper releasing IUDs. Okay. So LNG20 will be the correct answer. LNG20 का full form क्या होता है? Lenovo Gestrol 20 milligram. Lenovo Gestrol 20 milligram. So the next question is, adenine makes 30% of the DNA molecule. Okay. DNA molecule given है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड होगा. ओके. व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट? अपने को एडेनिन दे रखा है 30%, सो हमको थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन निकालना है. वेरी सिंपल. अगर एडेनिन 30 है तो ऑफकोर्स एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है? थाइमीन के साथ. तो थाइमीन भी 30 रहा होगा. ओके. जितना एडेनिन होता है थाइमीन है. सो थाइमीन इज 30%. सो आंसर तो हमारा यही आ गया, थर्ड ऑप्शन. पर अपने को दूसरे भी पता कर लेने हैं. सो अगर ये दोनों 30-30 हैं, विच मेक्स 60%. सो 100 में से 60% अगर एडेनिन और थाइमीन है. ओके. 60% अगर सॉरी हाँ, एडेनिन और थाइमीन मिला के 60% है, तो बाकी के जो 40% है वो कौन कौन रहे होंगे? ग्वानिन एंड साइटोसिन. सो ग्वानिन विल बी 20% एंड साइटोसिन विल ऑल्सो बी 20%. ओके. सो ग्वानिन इज 20%, साइटोसिन इज ऑल्सो 20%. सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. एस्परजिलस नाइगर. एस्परजिलस नाइगर क्या रिलीज करता है? ऑफकोर्स एस्परजिलस नाइगर सेक्रेट करता है सिट्रिक एसिड. ए का थर्ड. सो 1 विल बी द आंसर. तो हम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि यही सही है ना. एसिडोबैक्टर एसिडी, कभी भी एक को मैच करके हमको आंसर नहीं देना है. ठीक है. अनटिल अनलेस हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो. ओके. हमको सारे के सारे पर मैच कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी सीधी मिस्टेक भी हो सकती है. एसिडोबैक्टर एसिडी, एसिडिक एसिड, वी ऑल नो. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिकम विल बी ब्यूटारिक एसिड. ठीक है. एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड. ओके. सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. सो हमको ई स्टेटमेंट तक सारे रीड करने हैं. मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है. मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलता है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन सीलेंट्रेट्स या नाइडेरिया. नाइडेरिया और वी कैन कॉल देम सीलेंट्रेट्स. ओके. मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूसा by polyp asexually and formation of polyp by medusa sexually. ओके. ये पता है हमको, ये मेटाजेनेसिस होता है. कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे मेटाजेनेसिस ना देके मेटामेरिज्म देके हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. ठीक है. सो वो भी ध्यान रखना है. सो एम आई क्लियर विद इट? सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Echinoderms are triploblastic and coelomate animals. This is a correct statement. Okay. Roundworms have organ system level of body organization. Organ system level. Yes, roundworms have organ system. Roundworms कौन होता है? Aschel helminthes. Okay. Aschel helminthes are roundworms. Palm plates are present in ctenophores. यहाँ तक सही है. And help in digestion. No. यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया. Digestion में नहीं.
किस में काम में आते हैं? लोकोमोशन में, वी ऑल नो दैट. ओके, वाटर वास्कुलर सिस्टम is a characteristic of echinoderms. Yes, it is a characteristic feature of echinoderms. So statement B, C and E are correct. Statement B, C and E. So fourth option is the correct answer. Receptors for sperm binding in mammals are present in. It's a NCERT fact based क्वेश्चन, दोनों पहले से डाले होते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए. यस, यहाँ पे मेटामेरिज्म, नाइस. मैं जो वहाँ पे बात कर रहा था मेटाजेनेसिस मेटामेरिज्म में कंफ्यूज करने की, वो यहाँ पे आ गया. ओके, मेटामेरिज्म यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रहा. मेटामेरिज्म अलग है और मेटाजेनेसिस अलग है. सो मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट्स द सेगमेंटेशन. ओके, सो सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करता है वो किसमें होता है? एनालिडा में. सो ए का थर्ड. ओके, एंड कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम ये किसमें होता है? पॉलीफर्स में होता है, ठीक है. सो पॉलीफेरा, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ. सी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमको पता है किसमें होता है? टीनोफोरा में. सो सी का सेकंड, सी का सेकंड. सो एक तरीके से दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया. ओके, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय. ऑफ कोर्स एरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज करेगा? किडनी से रिलीज होता है. सो जीएजी सेल्स ऑफ किडनी. ओके, venereal diseases are can be spread through. Now this is a very nice terminology used here. Venereal diseases. Venereal disease is the second name given to STI, sexually transmitted infection, या STD, sexually transmitted diseases. इनको हम दोनों को venereal diseases बोलते हैं. It's a synonym. Okay, so यहाँ पे confuse. This term is given in NCERT. Okay, so no need to worry. Using sterile needles. अब अगर needle sterile है तो क्या STD फैलेगी? No. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल यहाँ से फैल सकता है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल फैल सकता है. किसिंग से क्या एसटीडी फैलता है? कभी नहीं, ठीक है. एंड इनहेरिटेंस से हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है. यहाँ पे हमको इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता. सो इनहेरिटेंस में हमको इतना श्योर नहीं है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता. ओके, सो हमको ये पता है कि बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. एंड वी नो दैट कि डी तो नहीं है किसी भी हालत में. सो बी सी एंड डी तो नहीं है. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. एंड वी कैन सी ई तो कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में ई तो है ही नहीं. ओके, सो इनहेरिटेंस से कभी भी एसटीआई नहीं होता. ओके, कभी कभी मतलब ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी ऐसे क्वेश्चंस में कि जो हम जिसमें श्योर नहीं है. सो वी हैव टू डू अ हिट एंड ट्रायल मेथड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच? अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Gastric cica are present at the junction of foregut and midgut. Okay, ये मैं आपको NCERT स्टेटमेंट बताऊँ. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. It's absolutely correct statement. These all are statement of NCERT. Okay, in females 7 to 9 sterna together form a genital pouch. बिल्कुल NCERT का ही स्टेटमेंट है ये. 10th abdominal segment in both sexes bears pair of anal cerci. Yes, 10th abdominal segment in both sex bears anal cerci, and in males 9th segment पे क्या प्रेजेंट होता है? Anal style. Anal cerci is responsible for auditory function. And anal style, जो anal style है ये किस लिए काम में आता है? It is a sexual organ. Okay, ये मेल्स में होता है, 9th segment में होता है. Okay, so the incorrect statement is the first statement. Now we can go and check the NCERT text. Just a minute, guys. Look at the diagram here. हमको हर चीज़ डायग्रामेटिकली देखनी है. ओके, सो यहाँ पे जो हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका है, हिपैटिक सीका गैस्ट्रिक सीका दोनों ही की बात है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस होल इज अ फोरगट एंड दिस होल इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिडगट है. इन दोनों के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक सीका. एंड बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट क्या प्रेजेंट है? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सो गैस्ट्रिक सीका एंड मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी इन दोनों पे पूछते हैं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. So now we have to match again. Physalia, हमको जो नेम्स हैं उनको हमको कॉमन नेम्स से मैच करना है. सो फाइसीलिया, वी ऑल नो दैट फाइसीलिया इज नोन एज Portuguese man of war. Okay, it's a NCERT fact. I can't do anything about it. Limulus is a living fossil. Okay, so A का second, B का third. Okay, Encyclostoma is the hookworm. C का fourth.
It's a purely fact-based question. I can't do anything about it. So third is the correct answer. You have to remember these common names. Which of the following organism bears hollow and pneumatic bones? Hollow and pneumatic bones are the characteristic of aves, which includes birds. So Neophron is vulture. Macropus is monkey. Hemidactylus is wall lizard. And Ornithorhynchus is platypus. Okay, so the bird is Neophron. Okay, जनरली हमको ऐसे साइंटिफिक नेम्स ही मिलेंगे, हम आपको कभी वो नहीं मिलेगा कि आराम से यहाँ पे वल्चर लिखा हुआ है या फिर वॉल लिजर्ड लिखा हुआ है, मंकी लिखा हुआ है, प्लेटिपस लिखा हुआ है. ये बहुत ईजी हो जाएगा. थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए हमको साइंटिफिक नेम्स मिलेंगे. सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज. वी ऑल नो दैट. इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. So the next question is, during the process of gene amplification, during PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning में अगर अपन ने very high temperature नहीं रखा, then which of the following steps will be affected first? So we all know जो PCR होता है इसमें सबसे पहले होता है denaturation, then annealing, then extension. Denaturation में हमको जो हाई टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 74 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना पड़ता है. सो हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट दिस. ओके, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हाई टेम्परेचर हम यहाँ रख रहे हैं, पर जो हमारा बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, वो हम एक्सटेंशन के ड्यूरिंग अप्लाई करते हैं. ओके, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो थर्मस एक्वेटिकस है वो भी डीनेचुरेशन के साथ ही होता है. कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है. सो इसको मैं यहीं पे दूर कर रहा हूँ. एक्सटेंशन जो प्रोसेस होता है, एक्सटेंशन जो स्टेप होता है, उसमें हम थर्मस एक्वेटिकस का यूज में लेते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये बात, पर कभी कभी ये मतलब ये आ सकता है, जो आपका 24 जो नीट होगा उसमें आ सकता है. सो कंफ्यूजन की नहीं है. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर 70 to 74 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है, वो डीनेचुरेशन के टाइम पे होता है. सो डीनेचुरेशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स? बायोफोर्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द क्वालिटी, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक विटामिन्स. ओके, उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया. ओके, सो इंप्रूव द प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे तो होता है. इंप्रूव रेजिस्टेंस इन डिजीजेस, रेजिस्टेंस के लिए कभी भी बायोफोर्टिफिकेशन नहीं करते. इंप्रूव विटामिन कंटेंट ये भी होता है, एंड इंप्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स भी ये भी होता है. सो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम कभी भी बायोफोर्टिफिकेशन टर्म यूज नहीं करते. ओके, डॉप्सन्स यूनिट आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ डॉप्सन यूनिट्स. ये हमेशा याद रखना, डॉप्सन्स यूनिट जो होती है ये ओजोन लेयर थिकनेस के काम में आती है. ओके, सो ओजोन इज द करेक्ट आंसर. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट इन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग इन डियोडेनम. किसकी ओपनिंग? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट. हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैटर. ये इसका दूसरा नाम है, एम्पुला ऑफ वैटर. एम्पुला वैटर से भी आ सकता है अगर थोड़ा सा टफ बनाने जाए क्वेश्चन को. सो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज द junction of hepatopancreatic duct and duodenum. So coming on to the next question, select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the level of alveoli. ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वी नो दैट यहाँ पे अपने को PO2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए PO2 हाई चाहिए. ओके, एंड PCO2 है वो हमको लो चाहिए. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो pH है हमारा वो हाई होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स द H प्लस आयन कंसंट्रेशन मस्ट बी लो. pH है तो H प्लस कंसंट्रेशन अपने आप लो हो जाएगा. सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? So high PO2, okay, low PCO2, okay, less H plus ion concentration, okay, and lower temperature. हाँ, temperature कम होना ये फेवर करता है. So first option will be the correct answer. दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं. Low PO2, yes. High PCO2, high PCO2 नहीं चाहिए हमको, low PCO2 चाहिए. High O2, okay. अच्छा ये low PO2 था, okay, I'm sorry. So ये भी नहीं चाहिए हमको. High PO2, yes. High PCO2, no. लो PO2 ये पहले गलत हो गया. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर हमको देखना. एल्कलॉइड्स, कोडीन इज एल्कलॉइड. ओके, टॉक्सिन, एब्रेन इज अ टॉक्सिन. ठीक है, एंड लैक्टिन, कॉन्काविलिन A इज अ लैक्टिन. ड्रग्स, रिक्सिन, रिक्सिन इज आल्सो अ टॉक्सिन. ठीक है, रिक्सिन ड्रग्स में नहीं आता. रिक्सिन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री टेबल. जो सॉरी बायो मॉलिक्यूल्स की जो टेबल है ना, जनरली बायोमोलिक्यूल्स से चैप्टर है उसमें टेबल से ही क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन भी टेबल्स का ही है. जनरली या तो ऐसे इनकरेक्ट पेयर मैच करना आता है या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं उससे. ओके, सो वी हैव टू डू वो जो टेबल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स को कौन रॉन्ग
रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशंस, स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइशन नहीं होती। इट्स अ करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जीआईटी में। ओके, थोड़ी बहुत कहाँ प्रेजेंट होती है? यूट्रस में प्रेजेंट होती है। ओके, एंड वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शंस करती है। मायोमेट्रियम जानते हैं ना? मायोमेट्रियम जो होती है वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होता है। सो इनवॉलेंट्री मसल्स, जीआईटी में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सो दे आर इनवॉलेंट्री। यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग पार्चुलेशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, सो ये भी करेक्ट है। हमको कहाँ देखना, क्या देखना? रॉन्ग। कम्युनिकेशन अमंग दिस सेल्स आर परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलकेटेड डिस्क। ये ऑप्शन गलत है। ये इंटरकैलकेटेड डिस्क कहाँ पे होती है? कार्डियक मसल्स में। ओके, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Okay, which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? early detection के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो बेस्ट है? So the first option is Western blotting technique, Southern blotting technique, ELISA technique and hybridization technique. So early molecular diagnostics के लिए हमको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस चाहिए होते हैं। सो ELISA टेक्निक जो होती है वो हमको अर्ली डायग्नोस्टिक जो अप्रोच है वो प्रोवाइड करती है बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं यहाँ पे सारे, और इन कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या मैकेनिज्म होता है वो हमको देखना है। सो जो वॉल्स होते हैं, जो आईयूडीज होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, हमको सबसे जो इजी वाला है ना सबसे पहले वो देखना होता है। सो सबसे इजी कौन से हैं? वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। सबसे पहले हम इनको देखते हैं। वेसेक्टॉमी इज वेसिक, वास डिफरेंस, ये वास है, सो वास डिफरेंस का रिमूवल, सो रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। ओके, तो सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे भी एक बार देख लेते हैं। ट्यूबेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, डी का फोर्थ, ये डी का फोर्थ है। ओके, आईयूडीज क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ओके, फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, सो बी का थर्ड हो जाएगा। एंड वॉल्स क्या करते हैं? जो एंटियोस्पर्म है उसको प्रिवेंट करते हैं, सो एंटियोस्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। वॉल्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं? सर्विक्स पे अप्लाई करते हैं। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी कभी स्टेटमेंट होता है वॉल्स आर अप्लाइड एट विजाइना। नो, वॉल्स आर नॉट अप्लाइड एट विजाइना, वॉल्स आर अप्लाइड एट सर्विक्स। ये एक अच्छा स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बनता है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमको पता है एक ट्रिक होता है GERL, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ये तीन होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइपोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गया, ये दोनों नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये हो सकता है बिल्कुल। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये नहीं होता। सो वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका जो निमोनिक क्या होता है? GERL। मेन जो ये होते हैं ये तीन होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एक ऑर्गेनल कंसिडर अब नहीं होता, यहाँ पे ऑर्गेनल्स का पूछा है। ओके, सो वैक्यूल इज नॉट अ ट्रू ऑर्गेनल, ये बस एक स्पेस होता है जिसमें कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसका कोई अपना कोई काम नहीं होता वैक्यूल का। ओके, सो मेनली इन तीन को कंसिडर करते हैं। अगर वैक्यूल ना हो ऑप्शन में वो चलेगा। ओके, यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा कहाँ पे होता है? ये पता है हमको, डायकाइनेसिस में होता है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ सेक्शन बी ऑफ द zoology section, which of these is not an important component? I'm sorry, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Okay, कौन सा इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन नहीं कोई कंपोनेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता, मतलब जब इनिशिएशन होता है पार्चुरेशन का तो कौन सा इवेंट नहीं होता इनमें से? ओके, सो जब पार्चुरेशन का इनिशिएशन होता है तब प्रोलैक्टिन का रिलीज होने लग जाता है। ओके, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ओके, एंड आफ्टर द बर्थ ये जो ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क इजेक्शन भी कराएगा। सो इसका भी रोल होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन होगा? एक बार इसको यहाँ पे होल्ड रखते हैं। इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, E:P रेशियो इंक्रीज होगा। यस, एस्ट्रोजन जो होता है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो ये भी होगा। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होता। ओके, जब आप MBBS में आएंगे तो आपको इस
इस चीज़ का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, इस चीज़ का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, इस चीज़ का भी मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। एट योर लेवल इट इज नॉट मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दीज स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का कौन सा स्टेप नहीं है इन सब में से? काउ इज एडमिनिस्ट्रेड हैविंग LH लाइक एक्टिविटी। LH लाइक एक्टिविटी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, FSH लाइक एक्टिविटी। ओके, LH लाइक एक्टिविटी वाला स्टेटमेंट गलत है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नॉट बोला है। ओके, नॉट, सो ये नहीं है। दूसरे भी पढ़ लेते हैं। काउ यील्ड्स अबाउट 6 to 8 एग्स। ओके, ये बिल्कुल सही है। काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द सैरोगेट मदर सेट्स 8 to 32 सेल स्टेज, ये भी बिल्कुल सही है। नाउ कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो इन दो नंबर्स को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे ये वो बोलते हैं काउ यील्ड्स अबाउट 8 to 32 एग्स, 8 to 32 एग्स। सो ये नंबर्स जो है ना 6 to 8 एग्स एंड 8 to 32 सेल स्टेज, ये सब नंबर्स भी आपको याद। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एलेंस रूल, एलेंस रूल क्या कहता है? मोर द बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, लेस हीट इज जनरेटेड, लेस हीट इज रिलीज्ड। जितना ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा उतनी ही कम जो हीट है वो रिलीज होगी, यानी कि हीट बॉडी के अंदर रहेगी, बॉडी के इनसाइड रहेगी। ओके, जितना ज़्यादा ये होगा बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतनी कम होगी। सो बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसका ज़्यादा होता है? पोलर सील का या पोलर बियर का? ओके, सो दिस इज द एलेंस रूल। कौन फॉलो करता है? पोलर बियर। ओके, या पोलर सील। ओके, पोलर सील की जगह पोलर बियर भी आपको गिवन हो सकता है, एनसीईआरटी में पोलर बियर गिवन है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन किस में देखने को मिलती है? डेजर्ट लिजर्ड में, तो सी का सेकंड हो जाएगा। सो सी ऑप्शन, सी का सेकंड एंड ए का फोर्थ। सो अभी भी हमको दो देखने। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कौन करता है? वी ऑल नो दैट फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है वो कैंगरू रैट करता है। कैसे? ये जो वाटर होता है बाय प्रोडक्ट, उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए काम में लेता है। जो कैंगरू रैट होता है वो क्या करता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करता है, और उसके ऑक्सीडेशन से जो वाटर क्रिएट होता है, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। उस वाटर को ये मेटाबॉलिज्म के लिए काम में लेता है। ओके, सो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो होता है वो मेराइन फिश करती है एट डेप्थ्स। ये कुछ प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं जिनको कहते हैं चैप्रोनेंस। दीज आर द हीट शॉक प्रोटीन्स। ओके, ये इनमें काम करती है, मतलब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं जो इनको एबनॉर्मल कंडीशंस, कभी कोई बहुत ज़्यादा हीट आ गई, क्योंकि ये मेराइन फिश जो होती हैं ये लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होती हैं। ओके, सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें चैप्रोनेंस, ये इनमें काम में आते हैं। ओके, सो बायोकेमिकल अडेप्टेशन डी का थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड। सो थर्ड विल द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन करने का, मैं सिर्फ और सिर्फ असर्शन पढ़ूंगा, रीजन देखूंगा ही नहीं, देखना नहीं है। पहले अपन असर्शन पढ़ते हैं। पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। अब हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे ऐसा क्यों होता है? लाइक सिम्टम्स एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। एल्टीट्यूड सिकनेस को अपन माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं। ओके, ये क्यों होने लग जाती है? एंड ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है, ये क्यों होने लगती है? एंड हार्ट पाल्पिटेशंस भी होने लग जाते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं, क्यों होती है? अब हमको इसका रीज़न रीज़न पढ़ना नहीं है, पहले अपने को इसका रीज़न खुद को पता होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे PO2 जो होता है वो लो होता है। मेन रीज़न जो है इन सब चीज़ों का वो है पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होता है वो लो होता है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लो होगा, सो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होगी? क्योंकि जो बाहर ऑक्सीजन है अगर वो कम है तो हमारी जो बॉडी के कीमो रिसेप्टर्स हैं वो ऑक्सीजन को सेंस नहीं कर पाते। ओके, ऑक्सीजन कम है तो वो कीमो रिसेप्टर्स ऑक्सीजन को सेंस नहीं कर पाते। सो अगर ऑक्सीजन कम है सो CO2 बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो कीमो रिसेप्टर CO2 को सेंस करने लगते हैं और ये सिग्नल देते हैं मेडुला को। ओके, मेडुला को जब ये सिग्नल्स देंगे सो ब्रीदिंग डिफिकल्टी वैसी हो जाएगी, क्योंकि मेडुला क्या करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स है मेडुला में। जब आप MBBS में होगे तो यू विल सी दे आर DRG एंड VRG। ओके, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स के दो पार्ट्स हैं। और फिर पॉन्स में मेडुला तो ये हो गया, पॉन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो आपको पता होगा,
एंड एक एपनियोस्टिक सेंटर भी होता है। ओके ये भी आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है। एंड हार्ट पैल्पिटेशंस भी होने लगते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस पे। ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो मेरा रीजन क्या है, ये होना चाहिए। अब मैं रीजन पढ़ूंगा। ओके ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला, बात वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो यही हमारा रीजन है। रीजन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. So first option will be the correct answer. Okay, following are the statements with reference to the lipids के लिए ये statement है। Okay, so statements पढ़ते हैं अपन। lipid having only single bonds are called unsaturated fatty acids। single bonds वाले को saturated बोलते हैं, unsaturated नहीं बोलते। so ये statement गलत है। lecithin is a phospholipid। okay, phospholipid है जो कि cell membrane में होता है। okay, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन केमिस्ट्री लगाओ थोड़ी सी। प्रोपेन तो 3 कार्बन, ट्राईहाइड्रोक्सी OH OH एंड OH। प्रोपेन है, बाकी सारे H लग जाएंगे। सो ये हमको इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। अगले एग्जाम जो आपका एग्जाम होता है उसमें ग्लिसरॉल की जगह ये ग्लाइकोल भी देख सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी सेम सी है, ग्लाइकोल भी दे सकते हैं। तो अपने को एक बार देख लेना है कि स्पेलिंग तो सही है ना, कहीं ग्लिसरॉल की जगह ग्लाइकोल तो नहीं गिवन है, एक बार देख लेना। ओके ग्लिसरॉल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब पढ़ता था इसको ग्लिसरॉल को कभी कभी ग्लाइकोल भी आ जाता था, कोई टेस्ट होते थे ना हमारे, उसमें ग्लाइकोल भी दे देते थे। तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता था। ओके और बहुत सारे बच्चों को गलत भी होता था। सो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये बिल्कुल सही है। पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। क्या पामेटिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं? नो। एल्केडेनोइक एसिड में होते हैं 20 कार्बन। ओके सो ये स्टेटमेंट गलत है। एल्केडेनोइक एसिड हैज 16 कार्बन। नो, ये भी गलत हो गया। ओके सो ये 3 गलत है। सही कौन से? बी एंड सी ऑप्शनल। करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से? बी एंड सी। सो बी एंड सी आर दी करेक्ट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। स्कैपुला, स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। कैसी होती है स्कैपुला? जब आप एमबीबीएस में आओगे सो इसकी अच्छे से आप पढ़ोगे स्कैपुला कैसी होती है। सो इट इज अ ट्रायंगुलर बोन लाइक दिस। ये मैं इसका डॉर्सल व्यू दे रहा हूँ स्कैपुला का। ओके यहाँ पे इसके एक्रोमियन प्रोसेस होता है, एंड यहाँ पे जो होती है वो एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है। ओके ये जो है इसको कहते हैं स्पाइन, जो मैं रेड कलर से बनाऊंगा। ये जो है इसको स्पाइन कहते हैं। एंड ये जो बोन है ये ट्रायंगुलर बोन है, दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर सी बोन है। ठीक है सो ये एक ट्रायंगुलर बोन है। सो स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ओके सो ए का फोर्थ। क्रेनियम, क्रेनियम जो होता है वो रिलेटेड होता है फाइब्रस जॉइंट से। इन फाइब्रस जॉइंट्स को बोलते हैं सूचर्स। ओके क्रेनियम बी का थर्ड। सो आंसर तो हमारा आ गया, और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम इज ऑल्सो अ फ्लैट बोन। स्टर्नम कैसी होती है दिखने में? स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है मैनुब्रियम, ये जो मैंने बनाया मैनुब्रियम है। ओके एंड उसके बाद जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे रिब्स आके, यहाँ पे जो होता है ये क्लैविकल अटैच होती है यहाँ पे आके, एंड यहाँ पे जो होता है वो फर्स्ट रिब होता है। एंड ये वाला जो लाइन है जो मैं रेड कलर से अभी बनाऊंगा, ये इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ लुइस। ओके जब आप एमबीबीएस में आएंगे सो यहाँ पे इस एंगल ऑफ लुइस पे 10 कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे सेकंड रिब आगे जुड़ता है, जो रिब्स की काउंटिंग होती है वो स्टर्नल एंगल से होती है। स्टर्नल एंगल पे कौन सा रिब होता है? सेकंड रिब होता है। ओके यहाँ पे T4 वर्टिब्रा होता है। ठीक है यहाँ पे जो है आयोटा जो होती है वो स्टार्ट एंड एंड दोनों होती है। आयोटा स्टार्ट भी यही होती है और एंड भी यही होती है। एंड जो हमारी एजाइगस वेन है, एजाइगस वेन क्या करती है? वो ड्रेन करती है वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा, SVC सुपीरियर वेना कावा में वो ड्रेन करती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल थोरैसिक डक्ट है, वो टर्न लेती है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो स्कैपुला है इट्स अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। सो उसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा। सो ए का फोर्थ। ऐसे अपने पास 2 ऑप्शन है। क्रेनियम उसमें फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं सूचर्स। सो उसमें बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड। सो आंसर करेक्ट आंसर बी फोर्थ ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू। पहले कौन सा बताना जो लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, एंड देन वो कौन से होते हैं? सबसे पहले इनका आंसर क्या होगा? टाइट जंक्शंस। ओके टाइट जंक्शंस, टाइट इसको याद कैसे रखना है? जो टाइट होगी चीज़ वो लीकेज से प्रिवेंट करेगी। ओके सो टाइट जंक्शंस हो गया पहले, और ऐसा वैसे ऑप्शन तो एक ही है तो आंसर तो हो जाएगा ये, पर अपन थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? एंड द फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट कौन करते हैं? ऑफकोर्स गैप जंक्शंस। ओके जिन 2 टिश्यूज में गैप होंगे वो
कम्युनिकेट करने में कौन सा हेल्प करते हैं, वो होते हैं गैप जंक्शंस. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. नाउ दिस इज अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो पहला स्टेटमेंट है कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलनिन. पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. क्यों? AUG कोड्स फॉर ओनली एंड ओनली मिथ्योनिन, नॉट फॉर फिनाइलएलनिन. सो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत. स्टेटमेंट 2 सेज AAA एंड AAG बोथ कोड्स फॉर अमीनो एसिड लाइसिन. बिल्कुल सही बात है. दोनों AAA और AAG लाइसिन के लिए एब्रीवेट किए जाते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Statement 1 is incorrect, yes, and statement 2 is true. So fourth option will be the correct answer. Which of the following secretes hormone relaxin during the later phase of pregnancy? Uh, Relaxin hormone is secreted by ovary. Okay, later stage of pregnancy में ग्राफिन फॉलिकल तो होता ही नहीं है, और ओवरी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एक तो कॉर्पस लुटियम में फीटस ओवरी के अंदर नहीं होता है, यूट्रस ओवरी के अंदर ऑफ कोर्स नहीं होता. सो कॉर्पस लुटियम विल बी द करेक्ट आंसर. एनसीईआरटी में वहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिलैक्सन होता है वो ओवरी से सेक्रेट होता है. तो अपने को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ओवरी में होते हैं? एक तो ग्राफिन फॉलिकल हो सकता है और कॉर्पस लुटियम हो सकता है. बट प्रेगनेंसी में क्या ग्राफिन फॉलिकल होगा? नहीं. प्रेगनेंसी में क्या रिटेन हो जाता है? कॉर्पस लुटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता है. और लेटर फेजेस में जो कॉर्पस लुटियम होता है वो सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा, एंड लेटर फेजेस में वो रिलैक्सिन का भी सेक्रेशन करेगा. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, कॉर्पस लुटियम. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म का जो प्रोस्टोमियम है उसके लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट सर्व्स एज अ कवरिंग ऑफ माउथ. बिल्कुल सही बात है. जो प्रोस्टोमियम होता है वो फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट. सो ये उसके ऐसे एक कवरिंग का हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल. बिल्कुल जो सॉइल के जो क्रैक्स होते हैं उनको ये थोड़ा पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है जो उसको ओपन करने में हेल्प करता है. ओके, दिस वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल सही बात है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तीनों के तीनों. ओके, ये तीनों के तीनों करेक्ट है. इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट. नो, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? पेरिस्टोमियम. ठीक है, वो प्रोस्टोमियम नहीं होता, वो पेरिस्टोमियम होता है. ओके, सो A, B एंड C आर करेक्ट ऑप्शन. सो द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, A, B एंड C आर करेक्ट. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये जनरली कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. Which one of the following statement about the histone proteins is wrong? Histone proteins are organized to form 8 molecules. Yes. इसमें इसकी जो लैंग्वेज हो सकती है ऑप्शन की वो ऑक्टामर. जो ऑक्टामर होते हैं वो जो हिस्टोन होते हैं वो ऑक्टामर की फॉर्म में रहते हैं. ओके, ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट्स जो होती है वो कंबाइन करके ऑक्टामर बना लेती हैं. ओके, इसका स्ट्रक्चर हिस्टोन का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप बायोकेम में पढ़ेंगे. पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक. नो, जो हिस्टोन्स होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें क्या होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन. एंड ये दोनों के दोनों क्या बेसिक प्रोटीन्स हैं, यानी कि एल्कलाइन होते हैं. तो ये एसिडिक नहीं होते. सो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था. सेकंड स्टेटमेंट विद द रॉन्ग. आगे की भी स्टेटमेंट्स बोलते हैं हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो मैंने भी आपको बताया. लाइसिन एंड आर्जिनिन हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन. बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉजिटिव चार्ज करते हैं. एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं पॉजिटिव चार्ज. कैसे? हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए से बाइंड होते हैं. डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, सो उससे बाइंड करने के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा. सो दिस दीज प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. सो यहाँ पे एसिडिक की जगह बेसिक होना चाहिए था. Now next question says during the muscular contraction which of the following event occur? ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है? क्या एच जोन डिसअपियर हो जाती है? बिल्कुल सही बात है. फॉर एग्जांपल ये दो हमारी है जेड लाइंस. ओके, इन दोनों के ये जो है ये लाइट बैंड्स हैं, इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं. और ये जो है ये एम बैंड है. ओके, ये है मायोसिन. ओके, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा दो एक्टिन्स के बीच में जो ये जोन है दिस इज द एच जोन. एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें एक्टिन फिलामेंट्स पास आते हैं और कैसा हो जाता है ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं. तो जो एच जोन होती है वो डिसअपियर हो जाती है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ए बैंड वाइडेंस. नो, ए बैंड की जो लेंथ होती है, ए बैंड क्या है? ये वाला बैंड है. और मैं रेड पेन से जो शो कर रहा हूँ ए बैंड है. ये जो रेड वाला जो मैं शो कर रहा हूँ इट इज द ए बैंड. वो एज इट इज बना रहता है, उसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होता. सो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ. आई बैंड रिड्यूस होगा. बिल्कुल सही बात है. ये जो मैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये है आई बैंड. जब ये क्लोज आएंगे तो एच जो बैंड है वो भी क्लोज आते हैं. एंड ये इन दोनों इनकी जो लेंथ है आई बैंड की वो रिड्यूस हो जाती है. माइसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. बिल्कुल सही बात है. जेड लाइन अटैच टू एक्टिन्स आर पुल इनवर्ड्स. जेड लाइन जो होती है वो इनवर्ड्स की तरफ पुल होती है. बिल्कुल सही बात है. सो ए सी डी एंड ई ये चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू बिल्कुल स्किड सीवियर. स्किड की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. डी फॉर डेफिशिएंसी. सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम. ओके, इम्यूनो डेफिशिएंसी. सो इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन. फर्स्ट ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर.
नाउ अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो फिलारियासिस जो होता है वो कौन कॉज करता है? वुचेलेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसको फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं. सो ए का थर्ड ऐसा ही की ऑप्शन है. तो आंसर तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया, पर हम दूसरे भी देखेंगे. अमीबाइसिस, अमीबाइसिस को हम बोलते हैं अमीबॉइड डाइसेंट्री. ओके, अमीबॉइड डाइसेंट्री, इट इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. सो बी का फोर्थ. निमोनिया, निमोनिया जो होता है वो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है. ओके, सो सी का फर्स्ट. एंड रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म क्या कॉज करता है? ट्राइकोफाइटोन. ओके, सो रिंगवॉर्म वाला क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. Okay, hope you understand well all the 200 questions of this paper. Thank you.